سے عطا فرمائے. آپ توجہ سے سنیے میری بات اور اس کا وظیفہ بتا دیں. جی نماز کی پابندی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد یا ٹائم نہ ملے تو مغرب کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. اول آخر دوشی پڑھ کے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے جو ان کا ٹانگ کا مسئلہ ہے, ہمارے بھائی کی جو روڈ ڈلی ہے, انشاءاللہ پروردگار اس کے اندر ان پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 500 مرتبہ. 500 مرتبہ. اچھا یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہمارے بزرگ بھی بتایا کرتے تھے اور میں نے کئی بزرگوں سے یہ وظیفہ سنا ہے. تو اس کی خاص یہ تین جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے, دیکھیے اسم اعظم کہا جاتا ہے ان تینوں, اللہ کے کہا جاتا ہے دوسرے جتنے اللہ کے اسم مبارک ہیں ان کو بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے, لیکن ان کی برکت کچھ خاص ہے کیونکہ اللہ کا جو لفظ ہے نا یہ ایسا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے بس. ٹھیک ہے, تو وہ ذات جی تو اسی لیے اس میں اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم بزرگوں سے بہت زیادہ کثرت سے منقول بھی ہے کہ وہ پڑھتے رہے اس وظیفے کو. تو جو پڑھتا ہے یہ ہر مشکل میں, ہر معاملات میں, ہر چیز کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک, جو بھی معاملہ ہو, چاہے بیماری کا ہو یا مصیبت کا ہو. یہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم جو وظیفہ ہے یہ بہت مجرب ہے اور اس سے بہت بزرگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ پڑھنا چاہیے. جی بھائی مائک دیجیے ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے خواب میں جو ہے اکثر دکھائی دیتا ہے سمندر دکھائی دیتا ہے. سمندر؟ جی اس کی کیا تعبیر ہے؟ اکثر خواب میں سمندر دکھائی دیتا ہے. جی میرے بھائی نماز کی پابندی کے ساتھ آپ روزانہ 11 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ کے سویا کریں, انشاءاللہ یہ دکھائی دینا بند ہو جائے گا. تو اس سے مراد ہے کہ جو کام ہے وہ طویل ہوتا جائے گا. تو سمندر دکھنا ہے کیسا؟ اس سے مراد سفر ہے. سفر؟ جی سفر ہے, اس سے مراد یہ ہے جو کبھی مائک دیجیے گا ان کو, یہ کتنے عرصے سے آپ کو سمندر دکھ رہا ہے خواب میں؟ تقریباً دیکھ رہا ہوں جناب 1 مہینے سے. 1 مہینے سے؟ تو کوئی سفر درپیش ہے آپ کو؟ انشاءاللہ العزیز. یعنی کام کو لمبا ہونے کی اس کے اندر وہ ہے, یعنی کہ تعبیر آ رہی ہے کہ کسی کام کو لمبا ہونے کے لیے تعبیر آ رہی ہے. جو ایک کام کریں گے جو سوچ رہے ہیں تو اس میں یعنی کہ تھوڑا سا وقت درکار ہوگا ان کو. اچھا تو کوئی کام سوچ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک میری اپنی خواہش ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ میں جو ہوں مکہ شریف جاؤں اور مدینہ جاؤں حاضری کے لیے. ماشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ جو آپ سمندر آپ نے دیکھا ہے یہ اللہ کرے یہ آپ کا مکے اور مدینے کا ہی سفر ہو. اللہ کرے ایسا. آمین آمین. جی ایک منٹ, ایک کال ہے. ہاں توصیف حسین پشاور سے ہیں. ہاں جی ملائیے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بابا نے پتا چلا تھا میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے. سر میں شدید؟ اچھا یہ آدھے سر میں رہتا ہے یا پورے سر میں؟ نہیں یہ فرنٹ والے حصے میں رہتا ہے. یہ ماتھے کی طرف یہاں؟ جی جی ہاں جی. اچھا جی سنیے گا لطیف صاحب, سنیے گا توجہ سے. جی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ لیں اور سورۃ ناس پڑھ کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. انشاءاللہ اسی برکت سے ان کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دائمی انشاءاللہ آنے والے دنوں کے لیے بھی ختم ہو جائے گا. سورۃ فلق سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ اسی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا. نظر کمزور ہو تب بھی تو سر میں درد. اس کی وجوہات کافی ساری ہوتی ہیں. نظر کمزور ہو یہ بھی وجہ ہے, بندش کے معاملات ہو یہ بھی وجہ ہے, نیند نہ بھری ہو تب بھی درد ہوتا ہے, نظر لگی ہوئی ہو تو تب بھی درد ہوتا ہے, تو بلڈ پریشر ہائی ہو تب بھی درد رہتا ہے, کولیسٹرول بڑا ہوا ہو تب بھی درد رہتا ہے. تو وجوہات تو بہت ساری ہیں. سر کے درد تو جو ہے وہ سمٹم ہے نا, جی جس طرح بخار کسی بیماری کی علامت ہے تو سر کا درد بھی اسی طرح کسی بیماری کی علامت ہے. جی علامت بنتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وظیفہ کریں, انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. ہاں جی. اور ایک کال ہے اور بھائی اچھا بھائی ان کو جیسے ایک کال بھی لیتے ہیں. سوال پوچھا ہے کسی نے, وہ خود فون پہ نہیں آنا چاہتے. اچھا. اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ خاتون ہے, ان کو شک ہے کہ ان کی جو شوہر ہے وہ کہیں دوسری شادی نہ کر لیں, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. مطلب پتہ نہیں یہ خواب میں ان کو نظر آتا ہے اور کافی مرتبہ نظر آیا. نہیں مطلب روکنے کے لیے وظیفہ بتانا ہے یا سرکار آبویسلی روکن گئی اور کی چاند گئی کہ ہو جاوے. جی ان کو جی ایک تو وہ تعبیر جاننا چاہ رہی ہے اور ایک وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی وظیفہ ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے, شادی شوہر کی رک جائے دوسری نہ. جی دیکھیے ایک تو سب سے پہلے وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ 500 مرتبہ یا ودودو پڑھیں روزانہ 500 مرتبہ. جی کسی ٹائم پہ پڑھ لیں اور شوگر پہ چینی پہ دم کریں
अपने शोहर को दूध में, चाय में, शरबत में जो भी पीते हैं उसमें मिक्स करके दें। और जो एक ताबीर है कि वो ख्वाब में देखती है कि किसी औरत के पीछे जा रहे हैं, तो मतलब इस तरह के मामलों में गिरफ्तार होने का अंदेशा है कि कुछ मामला खराब हो सकते हैं उनके। अच्छा, मुझे एक चीज बहुत मुझे शौक रहा है बचपन से, और मैंने आप में ये देखा जी, जी। है, एक चेहरा शनासी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेहरा देखकर बता देते हैं कि ये इस वक्त इसकी कैफियत क्या है। जी, जी। मैंने कई बार ऑफ एयर ये तजर्बा किया है। ये चेहरा शनासी कोई फन है या ये भी कोई रूहानी इल्म है? जी जी, ये अल्लाह का करम है असल में। हकीकत तो ये है कि अल्लाह का करम होता है। मैं ये हम हासिल करना चाहें कि मतलब किसी को देखकर वो तस्लीम भाई का मतलब है कि अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर मेरा ही मुंह आगे कर दिया जाए आपके, तो आप क्या चेहरा नहीं, ये तो सच्चा चेहरा है ना। मतलब अगर फर्ज करें कि हम जानना चाहते हैं कि फला शख्स सच बोल रहा है बिल्कुल। या झूठ बोल रहा है, जी, जी। तो जान सकते हैं ऐसा? देखिए, इसमें सबसे पहले बुजुर्गान दीन की इजाजत दरकार होती है, पीछे से इजाजत होती है, वो सब कुछ बढ़ाते हैं, दर्जे ब दर्जा तरक्की होती है। तो हजरत ठीक इजाजत है देना मुझे। हजरत, तो इसमें फिर वो एक मुकाम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला के फजल से और औलिया अल्लाह और जो मुर्शिद करीम होते हैं उनकी जो मामलत मिले होते हैं, उसकी बरकत से कशफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो मैं ये अल्लाह माफ करे अपने ऊपर दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कशफ होता है, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि इसमें फिर इल्म इतना बढ़ता है, खुलना शुरू हो जाता है कि उसको सब कुछ जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, तो जिससे अल्लाह ताला ये दिल कल्ब के अंदर ये बात डालता है कि ये मामला इनके साथ कैसा है, या ये फलां शख्स कैसे हैं, अच्छे हैं, या इनके साथ क्या मामला है। तो ये जो आदमी सामने बैठे हुए हैं, ये सच्चे हैं कि नहीं? नहीं, हजरत माशाल्लाह सच्चे और खरे आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी माशाल्लाह। बात नहीं है। हालांकि देख लें, आपसे इनकी मुलाकात नहीं है इतनी, फिर भी इन्होंने पहचान लिया। मैं जो कह रहा था ठीक था, जी तस्लीम भाई, जो मैं कह रहा था आप मानते नहीं जी है। मैं बिल्कुल मानता एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। जी। क्या सवाल कीजिएगा? आपके टेलीविजन की आवाज चल रही है, उसको सर बंद मैं करें। ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाने का वजीफा सोचता था। कौन रूठा हुआ है आपसे? कोई मसलन के कोई भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई। अल्लाह, आपको मनाना नहीं आता फिर? अरे अल्लाह अकबर, वो कह रहे हैं कि उठा हुआ है, वैसे तो जाके आपको मनाना नहीं आता है, हाँ तो मनाना कैसे आ जाए इनको? रूठे को कैसे मनाना है? जी, ईशा की नमाज के बाद 300 मरतबा या अजीज़ो पढ़ें, 300 मरतबा या अजीज़ो पढ़ के जो शख्स रूठा हुआ है उसका तस्वुर अपनी आंखों में लाएं, या रूठा हुआ है या रूठी हुई है, जी जी, जो भी मामला है वो मान जाए। जी जी मान जाए। तस्वुर सामने लाके उनके चेहरे का और उनके चेहरे पे दम करते हैं तस्वुर में, कि जैसे अच्छा। आपने उनके चेहरे पे दम कर दिया है तो इंशाअल्लाह उनका दिल वापस आपकी तरफ राग़िब हो जाएगा। तस्वीर पर भी दम कर सकते? तस्वीर नहीं, तस्वीर पर नहीं, तस्वुर में सिर्फ अपने ख्याल में दम करें, उनके आंखें चेहरे बंद पे करके चेहरा लाएं। आंखें बंद करके चेहरा सामने लाएं तस्वुर और में, दम और कर दें। फिर दम कर दें ठीक। रोजाना। हाँ? अल्लाह अकबर। वाह वाह, अल्लाह की कलाम में ताकत तो अल्लाह की बेतहा कलाम में है, ताकत है, ताकत है, बेतहा बिल्कुल ताकत है अल्लाह की कलाम में। बेशक। और ये तो खैर यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं है ना कि अल्लाह के अस्मा में, अल्लाह के पाक नामों में और अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत है कि वो बदल देता है। बस वो मैं बड़ा मजेदार आपको वाकया शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ। मेरे हमारे एक दोस्त हैं, ये सच्ची वाकया और मैं विटनेस हूँ इस चीज का, और नाम मुझे नहीं उनका लेना चाहिए। खैर वो लगे हुए थे, जीएम लगे हुए थे बूरबन पेर्ल कॉन्टिनेंटल में। ठीक है। तो मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं वहां पे ठहरा हुआ था, तो हम शाम को इकट्ठे हुए, तो वैसी मजाक में बात हुई। तो उस वक्त टीवी में कुछ चल रहा था कि एक आदमी शीशे खा रहा है और इस तरह की चीजें खा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि यार ये डैमेज नहीं होता? कहता खैर वो बात चली तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कलाम में इतनी ताकत है कि अगर मैं भी पढ़ के शीशे खाऊं तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो उस पे मैं थोड़ा सा मैं कहा अच्छा चलो, मैं कहा शाम में बैठ जाने हैं, कोई एक्सपेरिमेंट तो करके दिखाओ। मैंने उसको छेड़ा। ये सच्ची बात बता रहा हूँ खुदा पाक की कसम, कि हम रात को उनके ऑफिस में बैठे, उन्होंने 2 बल्ब मंगवाए, उन्होंने वो तोड़े, उन्होंने कुछ पढ़ा और 5-10 मिनट लिए कुछ पढ़ाई में, और उसके बाद वो आदमी शीशे के वो बल्ब खा गया।
अल्लाह अल्लाह अकबर। और उसको कुछ नहीं हुआ, और उसको कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी इधर काम कर रहा है, अभी भी बर्फ खा रहा है। नहीं बंद तो नहीं खा रहा लेकिन जी उस दिन वाकई मैं हिल गया था कि अल्लाह की कलाम वाकई। जी, वाह, और वाह, कोई वाह, सवाल सुभान करना अल्लाह। चाह रहा है, वजीफा पूछना चाह जी, ये अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहन, चले पहले उनका कर ले, हाँ दोनों साथ दे लेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी है 9 मंथ्स की है, लेकिन जब से वो पैदा हुई है अब तक उन्हें ना सुकून की नींद नहीं आती। अब तक वो अच्छा। ऐसी ही रहती है कि वो दिन में भी नहीं सो पाती और रात को भी सुकून से नहीं सो पाती। मेरी बहन, छोटे बच्चे तो इसी तरह नहीं तो मतलब बच्चे तो अच्छा खासा सोते हैं, बच्चे से कहते हैं ना बच्चे सोते हैं तो ग्रोथ पकड़ते हैं, वो तो हाँ। सोती ही नहीं है। ठीक है, आपको अभी बिल्कुल बताते हैं और साथ ही आपका भी बता दें। मेरे भी नहीं सोते थे, बड़े लिखते थे वो, मेरे भी नहीं सोते थे, हाँ। तीनों जी। नहीं सोते थे, अभी भी नहीं सोते बड़े होके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 4.5 साल का है और वो बीमार रहता है जब से पैदा हुआ है, अल्लाह और उसको मेरी सेहत अता कमर फरमाए। ठीक में है, बहुत नूरी दर्द बाबा, रहता है। ये हमारी बहन है जिनका बच्चा जो है वो बीमार रहता है 4.5 साल, और वो बहन है जिनका सोता नहीं बच्चा। जी जी, जिनका बच्चा सोता नहीं है तो उनको चाहिए कि 11 बार हर नमाज के बाद सूरत कौसर पढ़ें। सूरह कौसर। सूरह कौसर पढ़ के बच्चे के ऊपर दम करें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से जल्द बच्चा अपनी इंशाल्लाह जो उसकी नींद है वो पूरी करने लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, सूरह 11 कौसर पढ़ा, पढ़ा। सूरह कौसर जी। पढ़कर दम करें तो इंशाल्लाह होगी। और और जो ये हमारी बहन, जी बहन ने जो जिक्र किया है, आपसे गुजारिश है बहन, हर नमाज के बाद 7 बार सूरत फलक और 7 बार सूरत नास पाबंदी से अपने बच्चे को दम करें। 5 नमाजों में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के और पानी पे दम करके उसके मुंह पर छींटे मारें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके बच्चे को भी इंशाल्लाह सेहत अता फरमाएगा, जो मामला थे बीमारी के वो दूर फरमाएगा। इंशाल्लाह। ये जो वज़ाइफ बताते हैं नूरी बाबा, इसके लिए अंदर से ईमान का पुख्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ईमान पुख्ता नहीं है कि अल्लाह की कलाम पढ़ने से ये ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। सो आपके ईमान का पुख्ता होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जरूरी है, यकीन कामिल तो हर चीज में जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इंशाल्लाह इस यकीन के साथ, आप कहीं नहीं जाएंगे, देखते रहिए दिल दिल रमजान। दिल रमजान जी।